ناظرین کرام، سورہ رحمان قرآن مجید کی 55 صورت ہے، جس کے 3 رکوع میں 78 آیات ہیں۔ اس کی آیات 31 سے 36 تک ان دونوں گروہوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے باز پرس کی جائے گی۔ اس باز پرس سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ خدا کی خدائی تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس سے نکل کر بھاگ جانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ اس سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو۔ آیت 37-38 کے روز میں بتایا گیا ہے کہ یہ باز پرس قیامت ہونے والی ہے۔ آیت 39 سے 45 تک ان مجرم انسانوں اور جنوں کا انجام بتایا گیا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، اور آیت 46 سے آخر سورت کی تفصیل کے ساتھ وہ انعامات بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں ان نیک انسانوں اور جنوں کو عطا کیے گئے ہیں جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کی زندگی بسر کی ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کام کیا ہے کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ سورہ رحمان قرآن کریم کی ایک خوبصورت اور عظیم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو کرم کیے ہیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ہی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 41 بار ارشاد فرمایا گیا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ سورہ رحمان پڑھنے کی برکات: گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، اگر کسی پر جادو یا برے تعویذوں کا اثر ہو تو وہ دور ہو جائے گا، اگر کسی پر جنات کا اثر ہو تو وہ ختم ہو جائے گا، اگر ایسا بیمار ہو کہ ہر دوا بے اثر نظر آتی ہو اس کو شفا مل جائے گی، اگر کوئی شدید حاجت ہو اس کی تلاوت سے پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ سورہ رحمان کا وظیفہ ہے جو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ جو بھی میرا بھائی یا بہن اس وظیفہ کو سچے دل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے کرے گا، انشاءاللہ اس کی زندگی بدل جائے گی اور اس سے وہ سب کچھ حاصل ہوگا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ جو افراد بہت زیادہ پریشان ہیں، خاص طور پر رزق کی تنگی کا شکار ہے، وہ اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں، کیونکہ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے ان کی تمام مالی تنگیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے باوضو کسی بھی نماز کے بعد 10 منٹ کا وقت نکال کر یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح اللہ پاک کے ان 2 عظیم ناموں یا وہاب یا رزاق کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھنے ہیں، اور نماز حاجت ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 125 بار ورد کرنا ہے، مطلب ایک تسبیح اور 25 مرتبہ اوپر پڑھنا ہے، اور آخر میں ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام مسائل اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے اور آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مالی مسائل دور کریں اور آپ کی گھریلو پریشانیوں کو ختم کریں اور آپ کے کاروبار میں خوب برکت دے، آمین۔ جس شخص کے تمام بدن میں درد ہوتا ہو اسے چاہیے کہ سورہ رحمان کو پڑھ کر جہاں درد ہے وہاں پر دم کرے، انشاءاللہ صحت ہوگی۔ اگر خود نہ پڑھ سکے تو کسی دوسرے سے پڑھوا کر، کسی سے لکھوا کر اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ سورت کی برکت سے تمام امراض سے شفا مل جائے گی۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے اور اسے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا وسیع رزق ہو اور اس کے رزق میں برکت ہی برکت ہو تو دن میں کم سے کم ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھا کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے اور خیر و عافیت سے گھر واپس لوٹ آئے تو وہ گھر سے نکلنے سے پہلے بسم اللہ توکلت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، انشاءاللہ خیر و عافیت سے گھر واپس لوٹ آئے گا۔
जो शख्स ये चाहता है कि इसकी नौकरी में तरक्की हो और वो बड़े ओहदे पर फाइज हो तो वो रोज़ाना 150 मरतबा ला हौला वला। नाज़रीन कराम, सूरह रहमान कुरान मजीद की 55 सूरत है जिसके 3 रकू में 78 आयात हैं। इसकी आयात 31 से 36 तक इन दोनों ग्रोहों को खबरदार किया गया है कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब तुमसे बाज़ पुरस की जाएगी। इस बाज़ पुरस से बचकर तुम कहीं नहीं जा सकते। खुदा की खुदाई तुम्हें हर तरफ से घेरे हुए है, इससे निकल कर भाग जाना तुम्हारे बस में नहीं है। अगर तुम इस घमंड में मुब्तला हो कि इससे भाग सकते हो तो भाग कर देखो। आयत 37-38 के रोज में बताया गया है कि बाज़ पुरस क़यामत होने वाली है। आयत 39 से 45 तक इन मुजरिम इंसानों और जिन्नों का इंजाम बताया गया है जो दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे हैं, और आयत 46 से आखिर सूरत की तफसील के साथ वो इनामात बयान किए गए हैं जो आखिरत में इन नेक इंसानों और जिन्नों को अता किए गए हैं जिन्होंने दुनिया में खुदा तरसी की जिंदगी बसर की है और ये समझते हुए काम किया है कि हमें एक रोज अपने रब के सामने पेश होकर अपने अमाल का हिसाब देना है। सूरह रहमान कुरान करीम की एक खूबसूरत और अजीम सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर जो करम किए हैं और नेमतें अता फरमाई हैं इन पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। एक ही आयत फबिअज़्ज़ि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को 41 बार इरशाद फरमाया गया है। हदीस से साबित है कि जो शख्स इस सूरत की तिलावत करेगा क़यामत के दिन इसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। सूरह रहमान पढ़ने की बरकत। घर में बरकतें होती हैं, रिज़्क़ की तंगी दूर होती है। अगर किसी पर जादू या बुरे तावीज़ों का असर हो तो वो दूर हो जाएगा। अगर किसी पर जिन्नात का असर हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा बीमार हो कि हर दवा बेअसर नज़र आती हो इसको शफा मिल जाएगी। अगर कोई शदीद हाजत हो इसकी तिलावत से पूरी होगी। नाज़रीन कराम, आज का वजीफ़ा सूरह रहमान का वजीफ़ा है जो आप हर मकसद में कामयाबी के लिए कर सकते हैं, और ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। जो भी मेरा भाई या बहन इस वजीफ़ा को सच्चे दिल और अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए करेगा, इंशाअल्लाह इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी और इससे वो सब कुछ हासिल होगा जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजरब है, इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। जो अफराद बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ास तौर पर रिज़्क़ की तंगी का शिकार है, वो इस वजीफ़ा को ज़रूर आजमाएं क्योंकि इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से इनकी तमाम माली तंगियाँ दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला गैब के ख़जानों से रिज़्क़ अता फरमाएगा। नाज़रीन कराम, वजीफ़ा का तरीका बहुत ही आसान है। बस आपने बावज़ू किसी भी नमाज के बाद 10 मिनट का वक्त निकाल कर ये वजीफ़ा कर लेना है। सबसे पहले आपने एक तस्बीह अल्लाह पाक के इन 2 अजीम नामों या वहाबो या रज़ाको की पढ़नी है। यह तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 2 रकात नमाज हाजत के पढ़ने हैं और नमाज हाजत अदा करने के बाद आपने सूरह रहमान की आयत फबिअज़्ज़ि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को 125 बार विर्द करना है, मतलब एक तस्बीह और 25 मरतबा ऊपर पढ़ना है, और आखिर में एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लेनी है और फिर सजदे में सर रख कर अल्लाह पाक से अपनी हर हाजत के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से आपके तमाम मसाइल और परेशानियां हल हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपको बेशुमार रिज़्क़ और मालो दौलत अता फरमाएगा। मेरी दुआ है कि इस वजीफ़ा की बरकत से अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म करे और आपको वहाँ से रिज़्क़ अता करे जहाँ से आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। अल्लाह ताला आपके तमाम माली मसाइल दूर करें और आपकी घरेलू परेशानियों को ख़त्म करें और आपके कारोबार में खूब बरकत दे, आमीन। जिस शख्स के तमाम बदन में दर्द होता हो इसे चाहिए कि सूरह रहमान को पढ़कर जहाँ दर्द है वहाँ पर दम करे, इंशाअल्लाह सेहत होगी। अगर खुद न पढ़ सके तो किसी दूसरे से पढ़वा कर, किसी से लिखवा कर अपने पास रखें। इंशाअल्लाह सूरत की बरकत से तमाम अमराज से शिफा मिल जाएगी। जो शख्स फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके तमाम मसाइल को ख़त्म कर देता है और इसे अपने गैबी खजानों से रिज़्क़ अता करता है। जो शख्स ये चाहता है कि इसका वसी रिज़्क़ हो और इसके रिज़्क़ में बरकत ही बरकत हो तो दिन में कम से कम एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की पढ़ा करें। जो शख्स ये चाहता है कि जब वो घर से निकले और खैर आफियत से घर वापस लौट आए तो वो घर से निकलने से पहले बिस्मिल्लाह तवक्कलतु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। इंशाअल्लाह खैर आफियत से घर वापस लौट आएगा। जो शख्स ये चाहता है कि इसकी नौकरी में तरक्की हो और वो बड़े ओहदे पर फाइज हो तो वो रोज़ाना 150 मरतबा ला हौला वला कुव्वता
नाज़रीन कराम, सूरह रहमान कुरान मजीद की 55 सूरत है, जिसके 3 रकू में 78 आयात हैं। इसकी आयात 31 से 36 तक इन दोनों ग्रोहों को खबरदार किया गया है कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब तुमसे बाज़ पुरस की जाएगी। इस बाज़ पुरस से बचकर तुम कहीं नहीं जा सकते। खुदा की खुदाई तुम्हें हर तरफ से घेरे हुए है, इससे निकल कर भाग जाना तुम्हारे बस में नहीं है। अगर तुम इस घमंड में मुब्तला हो कि इससे भाग सकते हो तो भाग कर देखो। आयत 37-38 के रोज में बताया गया है कि बाज़ पुरस क़यामत होने वाली है। आयत 39 से 45 तक इन मुजरिम इंसानों और जिन्नों का इंजाम बताया गया है जो दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे हैं, और आयत 46 से आखिर सूरत की तफसील के साथ वो इनामात बयान किए गए हैं जो आखिरत में इन नेक इंसानों और जिन्नों को अता किए गए हैं जिन्होंने दुनिया में खुदा तरसी की जिंदगी बसर की है और ये समझते हुए काम किया है कि हमें एक रोज अपने रब के सामने पेश होकर अपने अमाल का हिसाब देना है। सूरह रहमान कुरान करीम की एक खूबसूरत और अजीम सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर जो करम किए हैं और नेमतें अता फरमाई हैं, इन पर शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। एक ही आयत फबिअज़्ज़ि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को 41 बार इरशाद फरमाया गया है। हदीस से साबित है कि जो शख्स इस सूरत की तिलावत करेगा क़यामत के दिन इसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। सूरह रहमान पढ़ने की बरकत। घर में बरकतें होती हैं, रिज़्क़ की तंगी दूर होती है। अगर किसी पर जादू या बुरे तावीज़ों का असर हो तो वो दूर हो जाएगा। अगर किसी पर जिन्नात का असर हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा बीमार हो कि हर दवा बेअसर नज़र आती हो, इसको शफा मिल जाएगी। अगर कोई शदीद हाजत हो, इसकी तिलावत से पूरी होगी। नाज़रीन कराम, आज का वजीफ़ा सूरह रहमान का वजीफ़ा है जो आप हर मकसद में कामयाबी के लिए कर सकते हैं, और ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। जो भी मेरा भाई या बहन इस वजीफ़ा को सच्चे दिल और अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए करेगा, इंशाअल्लाह इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी और इससे वो सब कुछ हासिल होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजरब है, इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। जो अफराद बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ास तौर पर इसकी तंगी का शिकार है, वो इस वजीफ़ा को ज़रूर आजमाएं, क्योंकि इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से इनकी तमाम माली तंगियाँ दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला गैब के ख़जानों से रिज़्क़ अता फरमाएगा। नाज़रीन कराम, वजीफ़ा का तरीका बहुत ही आसान है। बस आपने बावज़ू किसी भी नमाज के बाद 10 मिनट का वक्त निकाल कर ये वजीफ़ा कर लेना है। सबसे पहले आपने एक तस्बीह अल्लाह पाक के इन 2 अजीम नामों या वहाबो या रज़ाको की पढ़नी है। यह तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 2 रकात नमाज हाजत के पढ़ने हैं, और नमाज हाजत अदा करने के बाद आपने सूरह रहमान की आयत फबिअज़्ज़ि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को 125 बार विर्द करना है। मतलब एक तस्बीह और 25 मरतबा ऊपर पढ़ना है, और आखिर में एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लेनी है, और फिर सजदे में सर रख कर अल्लाह पाक से अपनी हर हाजत के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से आपके तमाम मसाइल और परेशानियां हल हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपको बेशुमार रिज़्क़ और मालो दौलत अता फरमाएगा। मेरी दुआ है कि इस वजीफ़ा की बरकत से अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म करे और आपको वहाँ से रिज़्क़ अता करे जहाँ से आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। अल्लाह ताला आपके तमाम माली मसाइल दूर करें और आपकी घरेलू परेशानियों को ख़त्म करें और आपके कारोबार में खूब बरकत दे, आमीन। जिस शख्स के तमाम बदन में दर्द होता हो, इससे चाहिए कि सूरह रहमान को पढ़कर जहाँ दर्द है वहाँ पर दम करे, इंशाअल्लाह सेहत होगी। अगर खुद न पढ़ सके तो किसी दूसरे से पढ़वा कर, किसी से लिखवा कर अपने पास रखें। इंशाअल्लाह सूरत की बरकत से तमाम अमराज से शिफा मिल जाएगी। जो शख्स फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके तमाम मसाइल को ख़त्म कर देता है और इसे अपने गैबी खजानों से रिज़्क़ अता करता है। जो शख्स ये चाहता है कि इसका वसी रिज़्क़ हो और इसके रिज़्क़ में बरकत ही बरकत हो, तो दिन में कम से कम एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की पढ़ा करें। जो शख्स ये चाहता है कि जब वो घर से निकले और खैर आफियत से घर वापस लौट आए, तो वो घर से निकलने से पहले बिस्मिल्लाह तवक्कलतु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। इंशाअल्लाह खैर आफियत से घर वापस लौट आएगा। जो शख्स ये चाहता है कि इसकी नौकरी में तरक्की हो और वो बड़े ओहदे पर फाइज हो, तो वो रोज़ाना 150 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें।